کئی برسوں پہلے ایک راجا تھا جس کے دور میں ایک انوکھا سیب کا پیڑ تھا۔ وہ سب سے الگ اس لیے تھا کیونکہ اس پر سونے کے سیب لگتے تھے۔ راجا کا ایک وفادار مالی ان سیبوں کو روز گنتا تھا اور بادشاہ کو بتاتا تھا۔ اچانک ایک دن ایک سیب چوری ہو گیا۔ مالی نے جب یہ بات راجا کو بتائی تو راجا غصہ ہو گیا اور اس نے غصے میں کہا، چور کو ہم ضرور سزا دیں گے۔ مالی نے اپنے بڑے بیٹے کو سیب کی رکھوالی کرنے کے لیے رکھا، لیکن بیچ رات میں ہی وہ سو گیا۔ دوسرے دن پھر سے ایک سیب کم تھا۔ آج میں اپنے دوسرے بیٹے کو سیبوں کی رکھوالی کے لیے رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، مگر اب میرا ایک بھی سیب کم نہیں ہونا چاہیے۔ مالک کی سخت تاکید کے باوجود دوسرا بیٹا بھی سو گیا۔ اگلے دن پھر ایک سیب کم تھا۔ بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا، تو اسی بات پہ مالک کے تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے نے سیبوں کے درخت کی رکھوالی کی ذمہ داری لی۔ رات ہو گئی اور مالک کا تیسرا بیٹا اپنے کام پر لگ گیا۔ آؤ سیب چورو، اب آ کر دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کون ہے جو سیب لے کر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب گہری رات ہو گئی تو اچانک مالک کے تیسرے بیٹے کو کچھ پتوں کی آواز آنے لگی، تو اس نے دیکھا کہ ایک سونے کا پرندہ اپنی چونچ سے سیب توڑنے لگا۔ مالک کے بیٹے نے بنا وقت گوائے فوراً سے نشانہ لگایا اور تیر چلایا، مگر اس سے پنچھی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بس ایک سونے کا پر اس کی پونچھ سے گرا اور پنچھی اڑ گیا۔ صبح اس سونے کے پر کو راجا کے سامنے پیش کیا گیا اور سبھی درباریوں کو دربار میں بلایا گیا۔ سب نے دیکھا کہ یہ ایک پر تو راجا کے قیمتی خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ اس ایک پر سے میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو پورا پنچھی چاہیے۔ میرے دربار میں ایسا بہادر کون ہے جو میرے سامنے پنچھی کو پیش کرے؟ مالی کا بڑا بیٹا آگے آ گیا اور اس نے اس کی ذمہ داری اٹھائی۔ شاباش! مالی کا بڑا بیٹا جنگل کی طرف اس سونے کے پنچھی کی تلاش میں چل پڑا۔ وہ جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا، تبھی بیچ میں اس نے ایک لومڑی کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر لڑکے نے اپنے تیر سے اس پر نشانہ لگایا۔ اچانک سے وہ حیران رہ گیا۔ مجھے مت مارو، میں تمہارے کام آ سکتی ہوں۔ تم سونے کے پنچھی کی تلاش میں ہو نا؟ لڑکا بہت حیران تھا کہ لومڑی کیسے بول سکتی ہے۔ پھر لومڑی نے کہا، میری بات دھیان سے سنو، تم یہاں سے سیدھے چلتے چلتے شام تک ایک گاؤں میں پہنچو گے، جہاں تمہیں ایک بہت بڑی اور خوبصورت حویلی دکھائی دے گی اور اس کے ٹھیک سامنے ایک جھونپڑی دکھائی دے گی۔ تم رات کو رکنے کے لیے اس جھونپڑی کا استعمال کرنا۔ مالی کا بیٹا تھوڑی سوچ میں پڑ گیا۔ اسے لگا یہ لومڑی کی کوئی چال ہوگی، اس لیے اس نے لومڑی پر تیر چلایا، لیکن وہ چوک گیا اور لومڑی وہاں سے بھاگ نکلی۔ مالک کا بیٹا اپنے راستے چل پڑا۔ آگے جا کر اسے محل اور جھونپڑی دکھائی دی جو بالکل لومڑی نے بتائی ویسی تھی۔ اس نے دیکھا کہ محل کی طرف لوگ گا رہے تھے، جھوم رہے تھے، بڑھیا کھانا کھا رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف جھونپڑی ہے اور وہاں ہر طرف اداسی ہے اور کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے سوچا اگر میں اس جھونپڑی والے گھر کی طرف گیا تو یہ میری بہت بڑی بے وقوفی ہوگی، اس لیے وہ محل کی طرف گیا جہاں اس نے کھایا پیا اور آرام کیا۔ وہ اس پنچھی اور اپنی سلطنت کو بھول گیا تھا۔ اسی بیچ بہت وقت گزر گیا لیکن بڑا بیٹا واپس نہیں آیا، اسی لیے دوسرا بیٹا اپنا فرض ادا کرنے کے لیے چل پڑا۔ اس کا بھی یہی انجام ہوا، اسے بھی راستے میں وہی لومڑی ملی۔ لومڑی نے اسے بھی وہی مشورہ دیا، لیکن وہ جب گاؤں میں پہنچا تو اسے اس کے بھائی نے محل کی طرف بلایا اور وہ بھی اپنے بھائی کی طرح پنچھی اور سلطنت کو بھول گیا۔ وقت گزرتا گیا، اب سب سے چھوٹا بیٹا بھی سونے کے پنچھی کی تلاش میں چل پڑا۔ مجھے جانے دیجیے ابا حضور۔ لیکن مالی اپنے دونوں بیٹوں کی طرح اب اس بیٹے کو بھی نہیں کھونا چاہتا تھا۔ ابا حضور، میں واپس لوٹوں گا، میرا یقین کیجیے، مجھے جانے دیجیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنا خیال رکھنا۔ مالک کا چھوٹا بیٹا جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے وہی لومڑی ملی جو اس کے بھائیوں کو ملی تھی۔ اس لومڑی نے اسے بھی وہی صلاح دی۔ اگر تم اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو جھونپڑی میں جاؤ۔ آپ کی صلاح کے لیے شکریہ دوست۔
मेरी पूंछ पर बैठो, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। जल्द ही वो गांव पहुंच गए। छोटे बेटे ने उस झोंपड़ी में ही रात गुजारी। जब सुबह हुई तब लोमड़ी वापस आई और उसने एक और सलाह दी। अब सीधे आगे बढ़ना, तुम्हें किला दिखाई देगा जहाँ बहुत से सिपाही सो रहे होंगे। तुम इनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना और बिना आवाज किए सीधे आगे बढ़ना और किले के अंदर जाना। वहाँ तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा जहाँ सोने का पंछी एक लकड़ी के पिंजरे में बंद होगा। इसके ठीक सामने एक सोने का पिंजरा भी होगा। तुम इस पिंजरे को बदलने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगे। लोमड़ी ने फिर एक बार अपनी पूंछ फैलाई और नौजवान लड़का उस पर सवार हो गया। दोनों किले के पास पहुंच गए। लड़का किले के अंदर गया जहां उसे लोमड़ी का बताया हुआ कमरा दिखाई दिया और सोने का पंछी भी। उसे देखकर लड़के ने कहा, इस खूबसूरत पंछी को ऐसे लकड़ी के पिंजरे में रखना अच्छी बात नहीं है। और जैसे ही लड़के ने पिंजरे को बदलने के लिए दरवाजा खोला तो पंछी चीखने लगा और उसकी चीख से सारे सिपाही जाग गए और उसको कैद में ले लिया गया। दूसरे दिन सुबह उसे दरबार में पेश किया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। बादशाह सलामत, मेहरबानी फरमाकर मुझ पर रहम कीजिए। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। जाओ मेरे लिए वो सोने का घोड़ा ले आओ जो तूफान जैसे तेज दौड़ता है, तभी मैं तुम्हारी सजा माफ करूंगा और वो सोने का पंछी भी दे दूंगा। उसने फिर से अपना सफर शुरू किया। तभी फिर से रास्ते में उसे उसकी दोस्त लोमड़ी मिली। तुमने देखा ना क्या हुआ, मेरी सलाह ना मानने का नतीजा। तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए सोने का घोड़ा ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम सीधे जाना, फिर तुम्हें एक किला नजर आएगा जहाँ वो घोड़ा अपने टेंट में खड़ा होगा। इसकी देखभाल करने वाला गहरी नींद में सो रहा होगा। घोड़े को चुपचाप वहाँ से छुड़ा लेना, पर इस पर पुराने चमड़े का सैडल डालना मत भूलना और इसके पास पड़ा सोने का सैडल बिल्कुल मत लेना। सब कुछ सही जा रहा था। घोड़े को देखकर लड़का बोला, मैं इसको सोने का सैडल दूंगा, इसका हक बनता है। जैसे ही लड़के ने सोने के सैडल को हाथ लगाया, उसकी देखभाल करने वाला जाग गया। सिपाही दौड़कर आए और उसे गिरफ्तार किया गया। अगले दिन फिर से उसे मौत की सजा सुनाई गई और उसने फिर से रहम की भीख मांगी। तुम खूबसूरत राजकुमारी को मेरे सामने ले आए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, फिर तुम वो पंछी और घोड़ा अपने साथ रख सकते हो। लड़का फिर अपनी राह चल पड़ा। उसे फिर लोमड़ी मिली। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम्हारे पास पंछी के साथ साथ घोड़ा भी होता। मैं तुम्हारी फिर से मदद करूंगी। यहाँ से आगे जाकर तुम किले में पहुँच जाओगे। वहाँ तुम्हें राजकुमारी मिलेगी। इसके हाथ को थाम लेना। आधी रात को राजकुमारी नहाने जाती है, तब वो तुम्हें रास्ता बताएगी, पर ध्यान रहे तुम उसे माँ बाप के पास मिलने के लिए मत जाने देना। लोमड़ी और लड़का किले के पास पहुंच गए। लोमड़ी ने जैसे कहा था, लड़के ने ठीक वैसे ही किया। आधी रात को राजकुमारी के साथ निकला, लेकिन निकलते निकलते लड़की ने रोते हुए कहा कि वो अपने बाबा से मिलना चाहती है। आखिर लड़के ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही वो अपने बाबा से मिलने आई, लड़के को फिर से कैदी बनाया गया। तुम मेरी बेटी को तब तक नहीं ले जा सकते जब तक तुम सामने वाले पहाड़ को 8 दिन में तोड़कर नहीं हटा देते। वो पहाड़ इतना बड़ा था कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकता था। 7 दिन होने के बाद भी वो पहाड़ का कुछ ही हिस्सा तोड़ पाया। मायूस होकर वो अभी बैठा ही था कि तभी अचानक उसकी दोस्त लोमड़ी वहाँ पर आ गई। तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ये काम कर देती हूँ। सुबह होते ही पहाड़ गायब था। राजा ने खुश होकर उसे अपनी बेटी सौंप दी। नौजवान और राजकुमारी साथ में चल पड़े। उसकी मुलाकात फिर से लोमड़ी से हुई। अब तुम तीनों को ले जा सकते हो, राजकुमारी, घोड़ा और पंछी भी। सच? पर कैसे? ध्यान से सुनो। तुम राजा के पास जाओ और इसे राजकुमारी दे दो। वो बहुत खुश होगा। फिर तुम घोड़े पर सवार होना और उनसे अलविदा कहना। राजकुमारी से आखिर में हाथ मिलाना, तभी झट से इसे घोड़े पर बिठाना और जितना तेज हो सके वहाँ से निकलना। इसके बाद दूसरे किले पे जाना जहाँ वो पंछी है।
मैं राजकुमारी के साथ बाहर रुकूंगी। तुम घोड़े को राजा को दिखाना, फिर वो पंछी को बाहर ले आएगा। तुम इससे पंछी देखने के लिए मांगना। जैसे ही तुम्हारे हाथ में पंछी आए, तुम बाहर निकल जाना। जैसे लोमड़ी ने कहा सब कुछ वैसे ही हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी दोस्त। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ऐसी बात है तो मुझे खत्म कर दो। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरी दोस्त हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। 2 बातों को हमेशा याद रखना। रास्ते में किसी की भी मदद मत करना और पैसे मत देना, और याद रहे नदी के किनारे बिल्कुल मत बैठना। वो राजकुमारी के साथ सवारी करते हुए उसी गांव में पहुंचा जहां उसके दोनों भाई थे। वहां 2 आदमियों को फांसी होने वाली थी। उसने देखा कि वो 2 आदमी उसके भाई थे जो अब चोर बन गए थे। रुको, मेरे सारे पैसे ले लो, पर मेरे भाइयों को छोड़ दो। अपने भाइयों को छुड़ाने के बाद वो सभी जंगल से जा रहे थे। तभी दोनों भाइयों ने नदी के किनारे बैठकर कुछ खाने की सोची। उसी दौरान छोटा भाई लोमड़ी की सलाह भूल गया और उससे पहले कि वो कुछ सोचता, उसके दोनों भाइयों ने उसे नदी में धकेल दिया। फिर राजकुमारी, घोड़ा और पंछी के साथ वो अपने बादशाह के दरबार में पहुंच गए। सलाम कबूल कीजिए बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, हम सोने के पंछी को ले आए हैं। हमने अपनी मेहनत से उसे जीता है। फिर शाही जश्न की तैयारी की गई, लेकिन इस बार घोड़े ने कुछ नहीं खाया, पंछी ने गाना नहीं गाया और राजकुमारी तो रोने लगी। छोटा बेटा नदी में गिर गया था, लेकिन किस्मत से नदी सूखी थी। लेकिन नदी का किनारा इतना सीधा था कि वो ऊपर नहीं आ पा रहा था। तभी उसकी दोस्त लोमड़ी फिर से वहां आ गई। अगर तुमने मेरी बात याद रखी होती तो आज ये हालत ना होती। फिर भी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। इसलिए मेरी पूंछ जल्दी से कस के पकड़ो। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे पहरेदार रखे हैं, वो तुम्हें देखते ही मार देंगे। फिर लड़के ने एक गरीब आदमी का रूप लिया और बादशाह के दरबार में पहुंच गया। जैसे ही घोड़े ने उसे देखा, उसने खाना शुरू किया। पंछी ने गाना शुरू किया और राजकुमारी ने रोना बंद किया। फिर वो राजा के पास गया और पूरी हकीकत बयान की। दोनों भाइयों को सजा दी गई और छोटे बेटे को राजकुमारी वापस मिल गई। कुछ साल बाद जब राजा का इंतकाल हुआ, तब माली के छोटे लड़के को सल्तनत का बादशाह बनाया गया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन वो जंगल गया। वहाँ उसे उसकी दोस्त लोमड़ी मिली। उसने फिर लड़के से गुजारिश की कि वो उसे खत्म करे। मेरे प्यारे दोस्त, मुझ पर मेहरबानी करो और मुझे खत्म कर दो। मुझे इस अजाब भरी जिंदगी से आजाद कर दो। छोटे बेटे ने दुखी मन से हाँ कर दिया। जैसे ही लोमड़ी की मौत हुई, वो एक आदमी में बदल गई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी का भाई था, जो पिछले कई सालों से गुम था। उसे जादूगर ने लोमड़ी में तब्दील कर दिया था और कई सालों से लोमड़ी के रूप में वो इसी चीज के लिए भटक रहा था। फिर उसे किसी ने बताया कि जब तक उसको कोई नेक दिल शहजादा खत्म नहीं करेगा, तब तक वो अपने असली रूप में नहीं आ सकता। जब शहजादे ने उसका सर कलम किया तो वो अपने असली रूप में आ गया और इस तरह वो सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।